A disciplined mind leads to happiness and success, while an undisciplined mind leads to suffering. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As I have started with this series on the jurisprudence, and in this series I have discussed certain important concepts relating to the jurisprudence. In the previous video, I have discussed about the analytical school. Today in this video, I am going to discuss with the historical school of jurisprudence. If we talk about the historical school of jurisprudence, 18th century was the century of rationalism, in which spirit of individualism persuaded the whole legal system. During the 18th century, the system of law was founded an abstract human reason, which was considered as the universal, permanent, and static in nature. A strong reason revolt developed during the flow of character of law and explained by analytical positivism as well as natural law jurist. And the mushrooming growth of the court take place in the 18th century and early part of 19th century. And the new classes grow in the society and the emergence of new movement take place. जैसा कि आपको पता है कि जब आप 18th सेंचुरी की बात करते हैं या 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो उस समय आप देखेंगे ऐसे कानून थे जो जिनका कोडिफिकेशन किया जा चुका था और इनकी जो ग्रोथ थी वो लगातार कोडिफाइड लॉज की जो ग्रोथ थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। और जैसे ही ये जो कोडिफाइड लॉ एग्जिस्टेंस में आए, न्यू क्लासेस ग्रू इन द सोसाइटी और उसी के साथ एक नया मूवमेंट स्टार्ट हो गया। और हिस्टोरिकल स्कूल वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द डिड्यूस्ड आइडिया एंड द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल व्यू एंड द नेचुरल law thinkers believed that law was always the static and unchangeable and revealed by reason. They failed to seed out the law that grows from the past and did not took history, tradition, custom, habits, religion as the true basis of law. यदि हम हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लॉ को ये विश्वास किया गया जो लॉ है दैट इज स्टेटिक, अनचेंजेबल बाय रीजन, जो बिल्कुल स्टेटिक है, जो चेंज नहीं होता। एंड दे फेल टू सीड द लॉ हैड ग्रोन फ्रॉम द पास्ट, या फिर ना उन्होंने मतलब उसके ट्रेडिशन के बारे में बात की, ना कस्टम के बारे में, ना हैबिट के बारे में, ना रिलीजन के बारे में, मतलब एक तरह से ट्रू बेसिस ऑफ जो लॉ होना चाहिए उसको ये डिस्कस नहीं किया है इन्होंने। इफ वी टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल लॉ, the exponents of the historical school of jurisprudence take social institutions in their sequence with the primacy to primitive legal institution of the society. And the task of historical school is to deal with the general principles governing the origin and development of law and with the influence that affect the law. He rejected all the creative participations of judge and jurist or the lawgiver in the making of law. Historical school of jurisprudence is not only descriptive history of law and legal institutions, it integrates their historical development and major changes and events in narrative and descriptive form. Historical jurisprudence attempt to examine the manner, situation, elements responsible for the development of law. And historical jurisprudence viewed the law as legacy of the past and product of each individual community. They regarded the law as biological growth, evolutionary phenomena, not as a artificial, arbitrary, and fanciful creation. They connect law with the community, past traditions, and myths. तो हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने लॉ को एक डिस्क्रिप्टिव हिस्ट्री के रूप में मतलब बारे में नहीं बताया, उन्होंने ना उसको लीगल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया, उन्होंने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट या जो मेजर चेंजेस उसके अंदर आए हैं उसको एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डिस्क्राइब किया है। और यहाँ पे ये कहा गया है कि जो हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस है वो लॉ को कहीं ना कहीं सिचुएशन, एलिमेंट्स जो लॉ की डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है उनके बारे में डिस्कस करता है, उनके बारे में बताता है। हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस viewed law as a legacy of the past and product of each individual community. और यहाँ पे जो उन्होंने लॉ को रिगार्ड किया एज ए बायोलॉजिकल ग्रोथ, इवोल्यूशनरी फिनोमिना and not as a artificial, arbitrary and fanciful creation. This means they connected the law with the communities, past traditions. उन्होंने लॉ को किसके साथ कनेक्ट किया है? कम्युनिटीज के जो पास्ट, जो पहले कभी ट्रेडिशन रही थी हमारे हिस्ट्री के अंदर,
तो उन्हीं के आधार पर उन्होंने ये कहा कि कानून बना हुआ है। मीन्स दे ट्रीटेड हिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉ। अकॉर्डिंग टू सर फ्रेडरिक पोलोक, historical method is nothing else than doctrine of evolution applied to human society and the institutions. Under the historical school, Savigny said that law is the general consciousness of the people. यहाँ पे उन्होंने सेविग्नी जी ने क्या कहा कि जो लॉ है वो जनरल कॉन्शियसनेस का परिणाम है, जो लोगों की सोच का परिणाम है। इट मीन्स दैट व्हाट द पीपल थिंक एंड बिहेव इज द बेसिस ऑफ लॉ। जो भी लोग सोचते हैं, जिस भी तरीके से वो बिहेव करते हैं, कहीं ना कहीं वो लॉ का कहीं ना कहीं बेस है, उसका आधार माना जाएगा, और जिसको हम वोल्जिस्ट के नाम से जानते हैं। एंड दिस थ्योरी ऑफ वोल्जिस्ट इज बेस्ड ऑन, ये जो थ्योरी वोल्जिस्ट की जो दी गई है सेविग्नी जी के द्वारा, ये हिस्टोरिकल मेथड के आधार पे दी गई है। और सेविग्नी इज द फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। सेविग्नी जी को हिस्टोरिकल स्कूल का फादर माना जाता है। If we talk about the historical jurisprudence, historical school is a branch of law. हिस्टोरिकल स्कूल जो है ये एक कानून की वो ब्रांच है that deals with the study, that studies the law from the history of the past. जो ये देखता है कि हिस्ट्री ऑफ द पास्ट, जो पास्ट की जो हिस्ट्री है उसके आधार पे कानून को डिस्क्राइब करने का कार्य करता है। इट ट्राइज टू एग्जामिन द मेथड्स, कंडीशंस एंड कंपोनेंट्स responsible for the evolution of law and interprets and reveals the social conditions and forces which have affected, which has offered such an exclusive law that produced and evolved with the community. According to him, according to this school, law is based on the जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। यहाँ पे जो हिस्टोरिकल स्कूल वाले हैं उनका कहना क्या है कि जो लॉ है वो लोगों की सोच का परिणाम है, जनरल कॉन्शियसनेस का परिणाम है। हियर द कॉन्शियसनेस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द सोसाइटी, वो कॉन्शियसनेस जो कहीं ना कहीं सोसाइटी जब एग्जिस्टेंस हुआ होगा, जब उसका जन्म हुआ होगा, उनकी लोगों की क्या सोच रही होगी, वही लॉ का आधार माना जा रहा है। एंड देयर वॉज नो पर्सन लाइक सोवरन। उस समय आप जब देखेंगे तो यदि पुराने जमाने में जब जाएंगे तो वहाँ पे कोई सोवरन नाम का तो कोई व्यक्ति होता ही नहीं था फॉर द क्रिएशन ऑफ लॉ, जो लॉ को क्रिएट कर सके। इन द एंशिएंट टाइम लॉ वाज बेस्ड ऑन सिंपल रूल्स, रेगुलेशंस, कस्टम्स, यूसेजेस, कन्वेंशंस एक्सेट्रा, विच लेटर डेवलप्ड बाय जूरिस्ट एंड लॉयर्स। यदि आप एंशिएंट टाइम में जाते हैं तो लॉ था वो सिंपल रूल्स, रेगुलेशंस, कस्टम्स, यूसेजेस के आधार पे बना हुआ था, जिसको बाद में जूरिस्ट या लॉयर्स के द्वारा डेवलप कर दिया गया। एंड बेसिक assumption ऑफ दिस हिस्टोरिकल स्कूल इज द that law is founded and not made। जो जनरल यदि आप देखेंगे हिस्टोरिकल स्कूल वाले की जो अजम्पशन है वो ये कहती है कि जो लॉ है वो पाया जाता, बनाया नहीं जाता। हिस्टोरिकल अप्रोच appeared in the beginning of 19th century and historical school is just opposite to the analytical school। इस तरह से आप देखेंगे कि जो एनालिटिकल स्कूल की जो सोच थी या जो हिस्टोरिकल स्कूल की सोच है वो एक दूसरे के अपोजिट जाती है, ये एक दूसरे के विपरीत है। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, according to historical school, the main source of law is the king's judgment, custom and habits. Many jurists such as Savigny, Montesquieu, Sir Henry Maney, Gregory Friedman are the main exponents of this historical school, and they said that law is the general will of the people। जो law है वो लोगों की जनरल विल के आधार पर बनाया गया है। दैट इज जनरल विल ऑफ द पीपल, दैट इज बेस्ड ऑन द फीलिंग ऑफ द कॉमन पीपल, दैट इज बेस्ड ऑन द कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। उन्होंने क्या कहा कि जो कानून है वो लोगों की सोच के आधार पर बना है, उनकी इच्छा के आधार पर बना है, ना कि मतलब इसको बनाया गया है। मतलब वो ये शुरू में जब सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आई थी ये तब से ही बनाया गया है, तब से ये अपना एग्जिस्टेंस में आ गया जब लोगों की सोच कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में आई। इसको बनाने के लिए कोई मतलब आप ये कहेंगे कि इसको बनाने के लिए कोई स्पेशल आधार नहीं है। यहाँ पे ये कहा जाएगा लॉ इज फाउंड नॉट मेड, ये पाया गया है ना कि बनाया गया है। एंड लॉ इज ए नेशनल करेक्टर। इस हिसाब से जो लॉ है वो क्या रखता है, एक नेशनल करेक्टर है। दैट इज नो यूनिवर्सल एप्लीकेशन। लॉ का जो करेक्टर है हिस्टोरिकल स्कूल के आधार पर यह कहा जाता है कि इसका एक नेशनल करेक्टर है जिसकी कोई यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं कही जा सकती। एंड इट डिफर्स फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। नेचुरली कि जो लॉ है वो सोसाइटी से एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी के अंदर डिफर करता है, स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। एंड लॉ डेवलप्स लाइक लैंग्वेज एंड लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज आप देखेंगे स्टेट टू स्टेट कहीं ना कहीं डिफर करती है, उसी तरह से लॉ भी डेवलप करता है लैंग्वेज के आधार की तरह ही। एज लैंग्वेज डिफर्स फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी एंड लोकेलिटी टू लोकेलिटी।
जैसे कि आपको पता है कि जब लैंग्वेज की बात करते हो, वो सोसाइटी, हर सोसाइटी की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है, हर लोकेलिटी की एक अलग लैंग्वेज होती है, वो उसी के हिसाब से डेवलप करती है। सिमिलरली लॉ जो है वो भी डेवलप करता है। अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू, यदि हम मोंटेस्क्यू या प्रोफेसर मैने वगैरह जी की बात करते हैं, तो लॉ इज द क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट, लोकल सिचुएशंस एंड एक्सीडेंट्स। उनका कहना क्या है कि जो लॉ है वो क्लाइमेट की वजह से, लोकल सिचुएशन की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से कहीं ना कहीं इसका जन्म हुआ है। सर हेनी मैने या जो मोंटेस्क्यू जी थे, ये वो पहले जूरिस्ट थे जिन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल को अडॉप्ट किया था। दे अडोप्टेड द हिस्टोरिकल स्कूल एंड कम टू द कंक्लूजन दैट, उनका क्या कहना था कि लॉज आर द क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट एंड द लोकल सिचुएशन एंड एक्सीडेंट्स। जो लॉ है वो क्लाइमेट, लोकल सिचुएशन और एक्सीडेंट का परिणाम है। एंड ही डिड नॉट probe further into the relationship between the law and the society, but pointed out that law must keep pace with the changing needs of the society. उन्होंने क्या कहा कि जो लॉ है वो लॉ जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है उसके आधार पे कानून भी चेंज होते रहते हैं। लॉ वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, वो एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी के हिसाब से वो वेरी करता है। तो यहाँ पे कानून को इन्होंने क्या कहा कि लोगों की सोच, जहाँ पे वो जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके सोच के ऊपर निर्भर कर रहा है, वो एक तरह से लोगों की जनरल कॉन्शियसनेस के आधार पे कानून बन रहा है। और यहाँ पे जो लॉ है दैट इज द क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट एंड लोकल सिचुएशंस। So this was about the Sir Henry Manne and Montesquieu. If we talk about the historical school of and legal history deals with merely with the factors, factual narration of the development of law and various legal institutions of the community in a chronological order. जो लीगल हिस्ट्री है वो डील करती है मतलब एक फैक्चुअल नरेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द लॉ। वो ये बताती है डेवलप लॉ की डेवलपमेंट कैसे कैसे हुई है उसके बारे में डिस्क्राइब करती है। और वेरियस लीगल इंस्टीट्यूशन, कुछ लीगल इंस्टीट्यूशन जो कम्युनिटी के अंदर हैं उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में डिस्कस करती है लीगल हिस्ट्री। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज ऑन द अदर हैंड प्रोसीड्स टू एग्जामिन द मैनर, circumstances and factors responsible for the growth of law and takes into account the social forces operating in the process of evolution of law. F.K. von Savigny, Miss Friedrich Karl von Savigny. He was a German jurist. Savigny was a German jurist in the 19th century and known as pioneer of historical school of jurisprudence, historical school of law, through the concept of Volksgist. सेविग्नी जी को उसके वॉल्जिस्ट कंसेप्ट के लिए उसे जाना जाता है। जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल, Volksgist means general consciousness of the people, that is suitable circumstances of the society. According to Savigny is the founder of historical school. He was given the Volksgist theory. According to this theory, law is based upon general will and general will of the common people, जिसको हम वॉल्जिस्ट के नाम से जानते हैं। तो सेविग्नी जी ने जो थे उन्होंने लॉ का आधार जो वो जनरल विल ऑफ द पीपल बताया था। उन्होंने कहा था जो कानून है वो जनरल लोगों की जनरल सोच की वजह से बना है। ही सेज दैट लॉ ग्रोज विद द ग्रोथ ऑफ नेशन, इंक्रीजेज विद इट एंड डाइज विद द डिसोल्यूशन ऑफ द नेशन, सो द लॉ हैज ए नेशनल कैरेक्टर। अकॉर्डिंग टू सेविग्नी जो कानून है वो नेशन के साथ ग्रो करता है, उसी के साथ वो बढ़ता है। और जैसे ही हमारा जो नेशन है वो डिजोल्व हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, नेशन की जब खत्म उसकी नेशनलिटी ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे जो कानून है जो एग्जिस्ट कर रहा है वो भी अपना भी ख़त्म हो जाएगा। इट डाइज विद द डिजोल्यूशन ऑफ नेशन। इसका मतलब जो कानून है उसका जो मेन करेक्टर है, उसका जो करेक्टर है वो एक नेशनल करेक्टर माना जाता है। ए लॉ विच इज सुटेबल ऑन वन सोसाइटी मे नॉट बी सुटेबल टू द अनदर सोसाइटी। भी एक कानून जो एक सोसाइटी पे सुटेबल है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी सोसाइटी पे भी सुटेबल हो। दस द लॉ हैज़ नो यूनिवर्सल एप्लीकेशन। आप भी जानते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो कानून चल रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं कि वो दूसरी सोसाइटी में भी काम कर पाएंगे। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो लॉ का जो करेक्टर है, लॉ की जो एप्लीकेशन है दैट इज यूनिवर्सल, इट हैज़ नेशनल करेक्टर। इसका जो लॉ का जो करेक्टर है वो नेशनल करेक्टर है, ना कि यूनिवर्सल। This means law has no universal application as it is based upon local conditions, local customs and elements that is prevailing in that society. फिर जो भी एक सोसाइटी के अंदर जिस तरह का कस्टम रहेंगे, जिस तरह की लोकल कंडीशंस होंगी, वहाँ के जैसे एलिमेंट होंगे उन्हीं के आधार पर वहाँ पे कानून प्रचलित होगा। और जैसे वो फैक्टर चेंज होंगे नेचुरली कानून भी चेंज होगा।
and all these things affect the law and make it suitable to the society. Sir, सेविग्नी हैज रिटन एन ऐसे वॉन बेरेफ। सेविग्नी का मेन जो कार्य रहा है वो वॉन बेरेफ उनका एक ऐसे था जिन्होंने जिस ऐसे में सेविग्नी अपोज द व्यू ऑफ टाइपुट एंड ले डाउन द सर्टेन प्रिंसिपल्स which heralded a new era of historical school. He published his history of Roman law in the Middle Ages. इन 6 वॉल्यूम्स, यहाँ पे उनकी जो हिस्ट्री थी रोमन लॉ के संबंध में उन्होंने 6 वॉल्यूम में पब्लिश की थी। और उन्होंने ही रोट द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ। हिज वर्क वाज ऑन द लॉ ऑफ प्रोफेशन, ऑन द लॉ ऑफ पोजेशन was the published in 1803, which is said to be the starting point of Savigny historical school. He rejected the natural law theory. उन्होंने जो नेचुरल लॉ थ्योरी थी उसका विरोध किया था और ये कहा था कि लॉ हैज ए नेशनल कैरेक्टर एंड डिस्ट्रैक्ट प्रिंसिपल ऑफ द ह्यूमन रीजन दैट इज बेस्ड ऑन abstract principle of the human region, and they supported the view that law is historical perception which evolves according to customs, traditions, culture and sentiments of the people. जो भी एक सोसाइटी के अंदर कस्टम है, ट्रेडिशंस है, कल्चर है, जो सेंटिमेंट्स है लोगों के, उनके आधार पे ही कानून होता है वहाँ का और उसी के हिसाब पे कानून इवॉल्व होते हैं. एंड सेविग्नी वाज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ द हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ. So this means, according to Professor Savigny, law grows with the growth of nation and strengthens with the strength of people, and finally, away as a nation loses its nationality. सेविग्नी जी ने ये कहा था कि जो लॉ है जैसे जैसे नेशन ग्रो करेगा वैसे वैसे कानून भी ग्रो करेगा, वैसे वैसे जैसे कानून स्ट्रेंथ होगा जैसे जैसे सोसाइटी स्ट्रेंथ होगी वैसे इस कानून भी स्ट्रेंथ होता चला जाएगा. और फाइनली अवे एज ए नेशन लूजिस, और जैसे ही उस नेशन की नेशनलिटी समाप्त होगी, उसकी राष्ट्रीयता खत्म होगी, वहां पे वो जो कानून प्रचलित है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, वो भी मर जाएगा एक तरह से. तो सेविग्नी एंड हिज मोस्ट पॉपुलर प्यूपिल जॉर्ज फ्राइडमैन फैमिली बिलीव डैट लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल. जो सेविग्नी जी है या जो उनके जो प्यूपिल हैं, जो फ्राइडमैन जी हैं, वो ये विश्वास करते थे कि जो लॉ है वो जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल का परिणाम है, लोगों की फ्री विल का परिणाम है, एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर स्पिरिट. अकॉर्डिंग टू सेविग्नी, ए लॉ मेड विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ द पास्ट हिस्टोरिकल कल्चर ट्रेडिशंस एंड ऑफ कम्युनिटी इज लाइकली टू क्रिएट मोर कंफ्यूजन रादर देन द Savigny the problems because the law is not artificial, lifeless, mechanical device. सेविग्नी जी का कहना था कि जो लॉ है उसको बिना किसी कंसिडरेशन के, यदि हम पास्ट हिस्टोरिकल वहाँ के जो कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, जो एक कम्युनिटी के अंदर प्रचलित है, यदि हम उनको देखे बिना उनकी अवहेलना करके यदि कोई कानून हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वो एक तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा और वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स सोसाइटी के अंदर आ जाएंगी. दिस मीन्स जो लॉ है वो आर्टिफिशियल नहीं है, ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, लाइफ मतलब जो कहीं ना कहीं लोगों की सोच पर निर्भर करता है. लॉ इज नॉट ए आर्टिफिशियल लाइफलेस मैकेनिकल डिवाइस दैट कैन क्रिएट कन्फ्यूजन. वो एक तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा यदि हम इस तरह के जो फैक्टर्स हैं, जो ऐसे कि मतलब कहना पड़ता है कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, जो कम्युनिटी के अंदर प्रचलित हैं, यदि हम उसको अनदेखा करेंगे तो वहाँ पे सही कानून नहीं चल पाएगा. द ओरिजिन ऑफ लॉ लॉइज इन द पॉपुलर स्पिरिट ऑफ द पीपल. यदि हम वोल्जिस थ्योरी की बात करते हैं तो वो ये कहती है कि जो लोगों की जो सोच है, पॉपुलर जो स्पिरिट है लोगों की, वही कानून का ओरिजिन माना जाता है. विच सेविग्नी टर्म्ड एज वोल्जिस्ट, जिसको सेविग्नी जी ने वोल्जिस्ट का नाम दिया था. ही डेवलप लीगल फिलोसफी फ्रॉम द इवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री. उन्होंने जो उनकी जो लीगल फिलोसफी जो उन्होंने डेवलप की थी वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री के इवोल्यूशन के आधार पर डेवलप की गई थी. And Savigny contribution to the development of legal historical school may briefly be started under the following heads. कैसे कैसे डेवलप हुआ? लॉ डेवलप्स लाइक लैंग्वेज. जैसे मैंने आपसे कहा कि जब कोई लॉ की बात करते हैं तो वो लैंग्वेज की तरह ही डेवलप करता है. जैसे कि आप देखेंगे कि जो स्टेट की जो लैंग्वेज होती है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है.
आपने देखा है कि हमारे यूपी में हिंदी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। जैसे जैसे आप स्टेट को चेंज करते चले जाएंगे, लैंग्वेज भी डेवलप होगी, लैंग्वेज चेंज होती चली जाएगी। इसी तरह से जो लो होता है ना, उसका जो करेक्टर होता है, दैट इज ऑल्सो लाइक ए लैंग्वेज। सेविग्नी पॉइंटेड आउट दैट द लॉ हैज ए नेशनल करेक्टर। उनका ये कहना था कि जो लॉ का जो करेक्टर है वो नेशनल करेक्टर है, दैट वेरी विद नेशन टू नेशन। हर नेशन का अपना एक अलग लॉ मिलेगा, वो नेशन टू नेशन वेरी करती है, उसका यूनिवर्सल करेक्टर नहीं है। तो इट डेवलप्स लाइक लैंग्वेज, इसका मतलब जो लॉ है वो लैंग्वेज की तरह ही कहीं ना कहीं वेरी करेगा। एंड बाइंड्स पीपल इनटू वन होल बिकॉज ऑफ देयर कॉमन फेथ, बिलीफ एंड कन्विक्शंस। यहाँ पे लोगों की जो कॉमन फेथ है, बिलीफ है, सोच है, उन्हीं के आधार पे वो लोगों को बांध के रखता है और वही कानून वहाँ पे प्रचलित होता है। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि जो प्रोफेसर सेविग्नी जी के हिसाब से जो लॉ है वो लैंग्वेज की तरह वेरी करता है। जैसे एक स्टेट की लैंग्वेज दूसरी स्टेट की लैंग्वेज से वेरी करती है, चेंज होती है, तो वो कहीं ना कहीं डेवलप उसी आधार पे, जैसे लैंग्वेज वेरी करती है उसी आधार पे लॉ भी वेरी करता है, नेशन टू नेशन वेरी करता है। एंड इट डेवलप्स लाइक ए नेशन लैंग्वेज एंड द बाइंड्स द पीपल इनटू वन। यहाँ पे जो लॉ है वो लोगों को बांध के रखता है एज ए होल, एक मतलब एक उसमें एकता के सूत्र में, क्योंकि वहाँ पे जो कानून चल रहा है वो उनके लोगों के कॉमन बिलीफ, कॉमन फेथ, कन्विक्शन के आधार पर बनाए गए हैं, को उनके आधार पर वो लॉ प्रचलित है, जिसकी वजह से वो लॉ उनको बांधे रखने में हेल्प करता है। तो जिसमें लॉ का जो करेक्टर है वो नेशनल करेक्टर, ना कि यूनिवर्सल। जिसमें लॉ इज बेस्ड ऑन नेशनल कंडीशन, सिचुएशंस एंड कस्टम्स। एंड लॉ इज, इन्होंने क्या कहा था, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ लॉ इज स्पॉन्टेनियस, देर आफ्टर जूरिस्ट डेवलप्ड इट। कि जो शुरू में जो डेवलपमेंट रही है लॉ की वो स्पॉन्टेनियस थी, वो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, और वहाँ पे बाद में उसी लॉ को जूरिस्ट ने डेवलप कर दिया। इट इज अर्ली स्टेज, इट वॉज फाउंडेड ऑन द जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। अकॉर्डिंग टू सेविग्नी जी ने क्या कहा कि जो लॉ है वो जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल के आधार पे पाया गया था। एज इट ग्रू एंड डेवलप्ड, एज एड्यूम द कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल फॉर्म ऑफ द लॉ। तो यहाँ पे जो कानून है वो आप लोगों की सोच के अंदर पाया गया था। ला इज द मैटर ऑफ अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ, लाइज फाउंड नोट मेड। उन्होंने क्या कहा कि जो कानून है वो पाया गया ना कि बनाया गया है। लॉ डेवलप्स लाइक ए लैंग्वेज, मैनर ऑफ द सोसाइटी, लॉ इज नॉट यूनिवर्सल। तो सेविग्नी वाज अपोज टू द कोडिफिकेशन ऑफ जर्मन लॉ। सेविग्नी ने जो कोडिफिकेशन हुआ था लॉ का, जर्मन लॉ का, उसको अपोज किया था। सेविग्नी वाज नॉट टोटली अगेंस्ट द कोडिफिकेशन, वो पूरी तरह से कोडिफिकेशन के अगेंस्ट नहीं थे, परंतु उन्होंने उसका विरोध किया था। तो लॉ इज द कंटिन्यूअस एंड अनब्रेकेबल प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू सेविग्नी जो लॉ है, सेविग्नी कंसिडर्स इट्स ग्रोथ एज ए कंटिन्यूअस एंड अनब्रेकेबल प्रोसेस। जो लॉ की जो डेवलपमेंट हुई है, ग्रोथ हुई है, वो कंटिन्यूसली हुई है एक सोसाइटी के अंदर। पहले तो लोगों की सोच के आधार पे जो जनरल कॉन्शियसनेस थी उसके आधार पे कानून वहाँ पे एग्जिस्टेंस में था, और उसी की धीरे धीरे कंटिन्यूस प्रोग्रेस होती चली गई, ग्रोथ होती चली गई, और वो जो ग्रोथ हुई है वो एक अनब्रेकेबल प्रोसेस है, फाउंडेड बाय कॉमन कल्चर। जो किसके आधार पे ग्रोथ हुई है, कल्चर, ट्रेडिशंस, या उनके जो विश्वास है, बिलीफ है, उनके आधार पर उसमें डेवलपमेंट हुई है, उसके आधार पर ग्रोथ हुई है। एंड admiration for the Roman law, while emphasizing the Volgist theory, people's spirit, people's common consciousness. Savigny justified the adoption of Roman law in the texture of German law, which was more or less diffused in it. So this means law has national character and it can't be have universal application. Main source of law is the general consciousness of the people. उनके हिसाब से जो लॉ का जो मेन सोर्स है, मेन स्रोत है, लोगों की जनरल कॉन्शियसनेस है, वोल्जिस्ट है। एंड लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्जिस्ट, लॉ इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ मैन्स फ्री विल। प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल नेसेसिटी गिव राइज टू लॉ spontaneously, and law is more artificial and complex since it has twofold life. Firstly, as a part of aggregate existence of the community, and secondly, as a distinct branch of knowledge. तो उन्होंने क्या कहा कि जो लॉ है वो आर्टिफिशियल है और कॉम्प्लेक्स है,
क्योंकि इसका जो मेन जो आप देखेंगे ये टू फोल्ड उसमें पाया गया है। दो कौन से दो फोल्ड बताए हैं? पहला इन्होंने बताया कि एज ए पार्ट ऑफ एग्रीगेट एग्जिस्टेंस ऑफ द कम्युनिटी, जैसे जैसे वो कम्युनिटी एग्जिस्टेंस में आई वहाँ पे कानून जो पाया गया। सेकेंड इज डिस्टिंक्ट ब्रांच ऑफ नॉलेज, ये एक अलग ब्रांच है नॉलेज की, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ जूरिस्ट, जो पाया गया था उसी को डेवलप किया गया जूरिस्ट के द्वारा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ द Volge's theory as per Savigny. These are the main features. If we talk about the criticism, Savigny theory has been criticized on many grounds. Savigny जी की जो थ्योरी थी उसको भी कई ग्राउंड्स पे क्रिटिसाइज किया गया। कौन कौन से ऐसे ग्राउंड है? नंबर 1, Savigny रिजेक्टेड द अदर सोर्सेज ऑफ लॉ। सेविग्नी जी ने जो बाकी जो सोर्स हैं जो कहीं ना कहीं लॉ के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं उनको रिजेक्ट किया, उनको नहीं माना। Law is not the result of arbitrary act of the legislature. To him, legal system was a part of culture of the people. He ignored other factors that helped to originate the law. He totally ignored the judge's functions to create the law. तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो सेविग्नी जी हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लॉ के लिए कोई मतलब कोई और फैक्टर की जरूरत नहीं है, लोगों की जनरल कॉन्शियसनेस का परिणाम है। तो यहाँ पे जो सेविग्नी जी हैं उन्होंने बाकी जो फैक्टर जो कहीं ना कहीं लॉ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते थे उनको नेग्लेक्ट कर दिया। उन्होंने लेजिस्लेशन को कोई स्थान नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि वहाँ पे उसकी वजह से कानून एग्जिस्टेंस में आता है। लीगल सिस्टम वाज द पार्ट ऑफ कल्चर, उनके हिसाब से जो लीगल सिस्टम है वो कल्चर का पार्ट है। और ही इग्नोर्ड द अदर फैक्टर्स दैट हेल्प इन द ओरिजिनेशन ऑफ द लॉ, ओरिजिनेटिंग द लॉ। ही टोटली इग्नोर्ड द जजेस क्रिएशन, जजेस फंक्शन टू क्रिएट द लॉ। जो जजेस के द्वारा जो लॉ क्रिएट किए गए उन्होंने उसको नकार दिया पूरी तरह से। तो दैट बिकॉज ऑफ दिस थ्योरी वाज क्रिटिसाइज्ड। सेकंड ग्राउंड इज इनकंसिस्टेंसी ऑफ द थ्योरी। इफ वी टॉक अबाउट द सेविग्नीज, ही एम्फेसाइज्ड ऑन द नेशनल करेक्टर ऑफ द लॉ। जैसे मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे सेविग्नी जी ने क्या कहा कि जो लॉ का जो करेक्टर है वो नेशनल करेक्टर है, वो नेशन टू नेशन वेरी करता है। But at the same time, he recommended the method of Roman law to be adopted for the modern condition. On one hand, he asserted that the origin of law is the popular consciousness of the people. On the other hand, he argues that some principles of the Roman law were to be universally applicable. Thus, there is inconsistency of the ideas. यहाँ पे जो सविग्नी जो आइडिया दे रहे हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर ही विरोधाभास पाया जा रहा है। एक तरफ से वो कहते हैं कि जो लॉ का जो करेक्टर है वो नेशनल करेक्टर है, और दूसरी तरफ वहां पे ये कहते हैं कि जो लॉ है वो उसके लिए रोमन मेथड्स को कहीं ना कहीं उसको रिकमेंड कर रहे हैं कि उसको अडॉप्ट किया गया मॉडर्न कंडीशन के हिसाब से। और उसके उन्होंने एक जगह तो ये कहा कि हे सेटेड द ओरिजिन ऑफ द लॉ इज द पॉपुलर कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। जो लॉ का जो मेन परिणाम है वो लोगों की सोच है। जबकि दूसरी तरफ ये क्या कहते हैं कि ही आर्ग्यूड दैट द सम प्रिंसिपल्स ऑफ रोमन लॉ, भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल भी है जो रोमन लॉ के जो यूनिवर्सली अप्लीकेबल। एक तरफ से तो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सली अप्लीकेबल हो ही नहीं सकता लॉ, उसका करेक्टर नेशनल करेक्टर है। और दूसरी तरफ से वो कह रहे हैं कि इसका यूनिवर्सल अप्लीकेशन है जो रोमन लॉ इसके जो प्रिंसिपल है इसके अंदर जो पाए जाते हैं। So this means there is inconsistency of the ideas given by Savigny. And the third criticism is Volgist, not the exclusive source of law. Savigny is of the view that proper consciousness is the source of law. Savigny जी ने क्या कहा कि जो लॉ की जो मेन जनरेशन जो इसका आने का कारण है वो लोगों की सोच है, पॉपुलर कॉन्शियसनेस है, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ लॉ। बट इट इज नॉट ट्रू। यदि हम कहीं भी क्या ये वास्तव में सही है? नहीं। There are many other technical legal rules which never existed in nor any connection with the popular consciousness. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टेक्निकल लीगल रूल्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे पॉपुलर कॉन्शियसनेस का तो कोई मतलब ही नहीं उठता, फिर भी वो लो हैं। तो इसका मतलब तो वॉल्जिस जो अकेला आधार वो बता रहे हैं वो नहीं हो सकता, उसके अलावा और भी कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, बहुत सारे जो सोर्स लॉ के सोर्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगी जो टेक्निकल जो लीगल रूल्स हैं जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वहाँ पे लोगों की सोच तो कहीं पाई नहीं जा रही, फिर भी वो सोर्स है लॉ का। तो यहाँ पे सेविग्नी जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो गई। एंड द नेक्स्ट क्रिटिसिज्म वाज कस्टम नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन पॉपुलर कॉन्शियसनेस। आप देखेंगे कि कुछ कस्टम ऐसे होते हैं जो लोगों की कॉन्शियसनेस के आधार पर नहीं होते। सेविग्नी जी ने क्या कहा कि कस्टम्स आर बेस्ड ऑन पॉपुलर कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं।
मैनी कस्टम्स ओरिजिनेटेड नॉट ओनली ऑन द कन्वीनियंस ऑफ द पावरफुल माइनॉरिटी। बहुत सारे कस्टम ऐसे मिलेंगे जो पावरफुल माइनॉरिटी के आधार पे, उनके कन्वीनियंस के आधार पे बना दिए जाते हैं। जैसे आप ले लो, पुराने ज़माने में जो स्लेवरी सिस्टम चलता था, वो लोगों की, जो बड़े बड़े जो लोग थे, जो पावरफुल पीपल थे, उनके आधार पे बनाए गए थे। उसके अंदर राइट या रॉन्ग का तो कोई मतलब ही नहीं था। नोट ग्राउंड फॉर राइटनेस। समटाइम्स कस्टम्स कंप्लीटली अपोज टू ईच अदर। कई बार ऐसे कस्टम होते हैं जो कहीं ना कहीं वो उसका अपोज भी होता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम कंट्री। भाई एक ही कंट्री के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे उसे मानते हैं, और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिसको मानने से वो इनकार भी करते हैं। तो दीज कस्टम्स डू नॉट रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द पीपल, कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। तो जो कस्टम है कि वो हमेशा लोगों की कॉमन कॉन्शियसनेस के आधार पे नहीं हो सकते, जिसको ये कानून का आधार बता रहे हैं। And the next criticism was that Savigny ignored the factors that influence the law. भाई यहाँ पे जब देखेंगे तो लॉ के जो फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल जो हो सकते हैं, उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लॉ। इन द मॉडर्न सोसाइटी मैनी रूल्स आर द रिजल्टिंग लॉन्ग एंड वायलेंट स्ट्रगल बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट विद द सोसाइटी। ये बहुत सारे ऐसे रूल हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के वायलेंट स्ट्रगल की वजह से बनाए गए हैं, जो सोसाइटी के अंदर हो रहा है। एंड मैनी थिंग्स आर अनएक्सप्लेन्ड। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सावेनी जी की जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। सर्टेन इनवेरिएबल ट्रेड्स सच एज मोड ऑफ इवोल्यूशन, ग्रोथ ऑफ लॉ, दीज आर लेफ्ट अनएक्सप्लेन्ड। उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया उनकी थ्योरी में। ही ऑल्सो डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वट इज नेशनल एंड वट इज यूनिवर्सल। उन्होंने क्या नेशनल होना चाहिए, क्या यूनिवर्सल, ये जो रीजन वो है, इसको भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया, इस संबंध को भी। तो जिसमें प्रोफेसर एलन ने आल्सो क्रिटिसाइज द सेविग्नीज व्यू। प्रोफेसर एलन ने भी सेविग्नीज की जो थ्योरी है उसको भी क्रिटिसाइज उन्होंने भी किया था। कोई जरूरी नहीं कि लोगों की कॉमन कॉन्शियसनेस का ही परिणाम हो, ये तो कोई जरूरी नहीं है। बट द आउटकम ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास। यहाँ पे हो सकता है कि वो लोगों की जो स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास है, जो पावरफुल पीपल है, उनका परिणाम हो। तो इसका मतलब ये कि सेविग्नीज की जो थ्योरी है वहाँ पे मतलब कॉमन कॉन्शियसनेस की तो कोई बात ही नहीं आ रही। वहाँ पे कॉमन कॉन्शियसनेस के आधार पे कोई जरूरी नहीं कि वो आधार बना है। वहाँ पे जो पावरफुल पीपल है उनकी 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 सोच का भी परिणाम हो सकता है वो। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टोन, ही हैज आल्सो क्रिटिसाइज द सेविग्नी थ्योरी। प्रोफेसर स्टोन ने भी सेविग्नी जी की जो थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज किया था, और ये कहते हुए किया था कि ही इग्नोर द एफिशिएंसी ऑफ द लेजिस्लेशन एंड ओवर एम्फेसाइज द कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। उन्होंने जो लेजिस्लेशन है, हमारी जो विधायिनी है, उसकी एफिशिएंसी को इग्नोर कर दिया। क्योंकि ज़्यादातर कानून आप देखेंगे तो विधायिनी के द्वारा बनाए जाते हैं, लेजिस्लेशन के द्वारा बनाए जाते हैं, और उन्होंने जो कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल है उसको ज़्यादा जोर देने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया द एबोलिशन ऑफ सती प्रथा, बाल विवाह वॉज ब्रोट इन टू चेंज बिकॉज ऑफ द पावरफुल एंड अफेक्टिव लेजिस्लेशन। क्योंकि अफेक्टिव लेजिस्लेशन जो लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए उसकी वजह से ये प्रथाएं खत्म हो पाई। यहाँ पर तो कॉमन कॉन्शियसनेस की बात ही नहीं आ रही। तो दिस मीन्स दिस थ्योरी वॉज क्रिटिसाइज्ड। ये थ्योरी इनकी क्रिटिसाइज की गई थी। एंड इफ यू टॉक अबाउट, ही वाज अगेंस्ट द कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ। जो सेविग्नी जी थे वो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ के बारे में कुछ नहीं बता रहे थे, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म। आज के टाइम में आप देखोगे ज़्यादातर जो लेजिस्लेशन है जो पास किए जाते हैं वो कोडिफिकेशन होते हैं उनके, और उन्होंने तो इसको कहीं तरह इग्नोर कर दिया। ही गेव मोर इम्पोर्टेंस टू द कस्टम कंपेयर टू द लेजिस्लेशन। उन्होंने कस्टम को ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने लेजिस्लेशन को तो इग्नोर कर दिया कि लेजिस्लेशन का भी कोई काम है, वो कस्टम को ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें जिसकी वजह से सेविग्नी जी की जो थ्योरी है उसको इग्नोर किया गया। सेविग्नी जी की जो थ्योरी है उसको गलत पाया गया, उसको क्रिटिसाइज किया गया। बट इफ वो टॉक अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सन हेनरी मैने, यदि हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं सन हेनरी मैने जी के, सेविग्नी इज नॉट कंसिडर्ड एज ग्रेटफुल जूरिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। हम ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा ग्रेट है, बट इनकी जो कंट्रीब्यूशन उसको हम नकार नहीं सकते। सेविग्नी थ्योरी इज ग्रेट, इज ए रिएक्शन अगेंस्ट द नेचुरल लॉ थ्योरी। सेविग्नी की जो थ्योरी है ये नेचुरल लॉ थ्योरीज के बिल्कुल एक तरह से अगेंस्ट वाली रिएक्शन थी। एंड सेविग्नी थ्योरी came as a powerful reaction against the natural law principle, natural law theory. Professor Alan called the historical moment as the revolt all fact. प्रोफेसर एलन ने इसको हिस्टोरिकल मूवमेंट को रिवोल्ट ऑफ फैक्ट बताया था अगेंस्ट द फैंसी हिस्टोरिकल्स ट्राई टू एस्टेब्लिश लीगल थ्योरी ऑफ द यूनिवर्सल एप्लीकेशन।
without any consideration. Second contribution is salutary correlative to the methods of natural lawyers. According to Professor Dice, one of the whole work of Savigny was the solution of correction of the methods of the natural lawyers. And the third contribution is truth of the Savigny's theory. The great truth of the Savigny theory is that nation's legal system is generally influenced by the culture and character of the people. जनरली आप देखेंगे जो किसी भी सोसाइटी के अंदर जो सेवेनी जी की जो थ्योरी है, जो लीगल सिस्टम है, उसके अंदर जो लीगल सिस्टम होता है वहाँ के कल्चर या उनके जो करेक्टर होते हैं लोगों के, वो उसके द्वारा उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है. और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो थ्योरी है दैट इज इन द हैंड्स ऑफ नेशनल सोशलिस्ट एंड इट वाज द मिसफॉर्च्यून और अनफॉर्च्यून ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ वर्ल्ड was used by the national society and Germany for entire different population. To them, nation means a rational group, and it was the function of the law to keep the pure and protected. Savigny influenced very wide. Savigny later on this Savigny theory was influenced in by many jurists. इसी theory को कई jurists के द्वारा influence किया गया and value of the historical school was fully understood. बाद में इसकी कंट्रीब्यूशन को उनकी वैल्यू को समझा गया. And his method was also followed by England, who studied the various legal system. This theory was warning against the hasty legislation. जो सेवेनी की जो थ्योरी है hasty legislation के अगेंस्ट वार्निंग है. सेवेनी जी का जो व्यू है lies closely connected with the people, contain germs of future. Sociological theory after Savigny enriched stressed the importance of the study of divine law, which he said that which is different from dry relationship. So this means we can conclude that Savigny's legal theory marked the beginning of the modern jurisprudence. हम ये कह सकते हैं कि जो सेवेनी की जो लीगल थ्योरी है ये एक तरह से मॉडर्न jurisprudence की शुरुआत है. His Volgist theory interpreted the law in the terms of people's will. उनकी जो वोल्जिस थ्योरी आई उन्होंने लोगों की सोच के बारे में कुछ ना कुछ सोचना शुरू किया एंड एम्फेसाइज्ड ऑन द रिलेशन ऑफ द लॉ एंड द सोसाइटी. उन्होंने लॉ एंड सोसाइटी के बीच में संबंध को कहीं ना कहीं स्थापित करने की कोशिश की. एंड दिस थ्योरी केम एज ए रिवोल्ट अगेंस्ट द 18th century नेशनल लॉ थ्योरी एंड एनालिटिकल पॉजिटिविज्म. And Savigny's approach to new law give birth to comparative jurisprudence. Savigny की जो अप्रोच आई थी इसी की वजह से comparative जो jurisprudence है उसका जन्म हो पाया. And which has been accepted as most important branch of the legal study. और ये जो comparative jurisprudence है इसको legal studies की एक important branch के रूप में देखा जा सकता है आज के टाइम में. तो this was all about the Savigny's theory, Volg's theory. That is one of the most important question for the examination point of view. And if you have any doubt, then you must put down in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe this channel for the further updates. Thank you.